میں ہوں آپ کی ہوسٹ عریج ندیم اور ایز یوزول میرا اسٹوڈیو میں ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں نائلہ نذیر۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں جرائم پیشہ عناصر اور جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، تو وہیں دوسری جانب دیکھا جائے تو پولیس کو عوام کے محافظ اور رکھوالے کہا جاتا ہے۔ تو جس طرح کہ مریم نواز شریف کی جانب سے کہا گیا تھا کہ تمام پولیس والے جو ہیں وہ سائلین سے سر اور میڈم کہہ کے انہیں پکاریں اور ان کے ساتھ بڑے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں، مگر بدقسمتی سے ہمارے جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، پنجاب پولیس ہے، جہاں انہیں عوام کا رکھوالا سمجھا جاتا ہے نائلہ، وہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو معاشرے میں پولیس ہیں ابھی بھی کچھ ان میں آفیسرز ایسے ہیں کہ جس طرح ایک کہاوت ہے کہ گندی مچھلی پورا تالاب گندا کر دیتی ہے۔ بالکل۔ تو اس طرح کے سینز ہو رہے ہیں کہ پولیس والے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں، اور بسپ پروگرام اگر کہا جائے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جہاں عوام اسے اپنا مسیحا سمجھتی ہے، عوام کچھ گھر ایسے ہیں جو مستق اور سفید پوش ہوتے ہیں اور وہ گورنمنٹ سے جو ہے وہ اپنی ماہانہ قسط وصول کرتے ہیں۔ ہاں، ان سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر کے جو خرچ وغیرہ ہیں وہ اچھے طریقے سے ذرا چل جاتے ہیں، وہ سروائیو کر جاتے ہیں لوگ، مگر بدقسمتی سے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو ڈیوائس ہولڈرز ہوتے ہیں، ڈیوائس مافیا ہوتے ہیں، وہ سرگرم ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سروے کرانے کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ اس قدر مجبور ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ چلیں اگر 14,000 کی قسط آ رہی ہے، 2,000 کٹ کر رہے ہیں، 3,000 کچھ تو آئے گا، یعنی کہ something is better than nothing، کہ کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے کچھ ہو جانا۔ تو اب دیکھا جائے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سفید پوش لوگوں کے لیے ایک مسیحا کا رول ادا کر رہا ہے کہ وہاں سے ان کو بچوں کے کچھ وظائف بھی آتے ہیں، ان میں سے کٹوتیاں ہوتی ہیں۔ یہ معاملات ہم بہت بار اٹھاتے ہیں، ان کے بارے میں ہم لوگ نیوز ہائی لائٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک روز کا نہیں ہے، یہ ہر منتھ جو ہے نا وہ اسی سینٹر پر کوئی نہ کوئی مسئلے سامنے آ رہے ہیں۔ 3 ماہ بعد ان کی جو ہے وہ ایک ایپیسوڈ آتی ہے، ایک قسط آتی ہے، اور دین پھر یہ ہو جاتا ہے کہ ان میں سے کٹوتیاں ہوتی ہیں۔ اب کٹوتیاں ہوتی ہیں، ہم ان کے بارے میں نیوزیں ہائی لائٹ کرتے ہیں، اچھا وہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایکشن ہو گیا، پھر اس کے بعد کچھ لین دین کا معاملہ ہوا، وہ معاملہ پوری رفع دفع ہو گیا، پھر یہ ہو جاتا ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ حوصلے مل جاتے ہیں کہ ہم لوگ لے دے کے معاملہ رفع دفع کر دیتے ہیں، تو باقی ان کے معاملات پھر وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں۔ مطلب کہ بہت ہائی لائٹ کیا جاتا ہے لیکن جو ہے نا اس کو پراپر لیا نہیں جاتا، اس پہ ایکشن نہیں ہوتا، ایکشن سرسری سا لیتے ہیں عوام کی نظر میں آنے کے لیے، اس کے بعد اگین پھر ہنگامہ کیا ہے، چلو لوگ کہیں گے کہ واقعی کوئی ایکشن ہو گیا، لیکن وہ وہیں پہ جنہوں نے بدتمیزی کی ہوتی ہے، جو پولیس والے ہوتے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر ہوتے ہیں، وہ وہیں پہ ہی ہیں۔ بالکل۔ اب ایسا سین ہوتا ہے کہ بسپ کے جو سینٹر میں سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ عوام پیسوں کے لیے اتنی مجبور ہو جاتی ہے کہ کچھ وہاں پہ لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، کوئی پراپر ارینجمنٹس نہیں ہوتے، پانی کا نظام نہیں ہوتا، اور کچھ دھکم پہ کچھ بد انتظامی اس طریقے سے ہوتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو دھکم پیل کر رہے ہوتے ہیں اور اسی کے نتیجے میں کوئی مر جاتا ہے، کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے، کسی کا سر پھٹ جاتا ہے۔ یہ معاملات دیکھیں کہتے ہیں کہ بچوں کو نہ لے کے آئے، اب ان کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، کچھ بچوں کو بھی ساتھ لے آتے ہیں، ظاہر ہے گھر میں کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، اور پھر یہ بھی پراپر ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ اتنے بجے آئیں تو اتنے بجے واپس جائیں گے، ایک فکس ٹائمنگ نہیں ہے، تو پھر ہونی چاہیے۔ بالکل۔ اب یہ ہو جاتا ہے نا کہ کچھ ارینجمنٹس بد انتظامی کے ہوتے ہیں، ڈسپلن نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے جو معاملات ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اب ایسا ہی آپ کو پتہ ہے کہ سرگودا میں بھی ایک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پہ لڑکی جو ہے وہ سم لینے کے لیے بسپ کے سینٹر میں گئی ہے، بالکل 2 بجے آئی ہے، اور وہ ایک لائن میں کھڑی ہوئی ہے، اور لائن میں کھڑے ہونے کے باوجود وہاں پہ ایک میل بندہ آیا ہے، اس نے اسے کہا ہے کہ تم لائن سے پیچھے چلے جاؤ، اس نے کہا کہ میں لائن میں ہی ہوں۔ اب یہ والا سین ہو جاتا ہے کہ اس لڑکی لائن میں ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ ساتھ اتنی زیادتی اور تشدد کیوں؟ ہاں اچھا، میں وہی بات پہ آنے لگی تھی کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ لائن سے پیچھے چلے جاؤ، اس کا صرف اتنا کہنا کہ میں لائن میں ہی ہوں، اس کی بنا پر اس کو تشدد کا نشانہ بنانا۔ میل پولیس والا ہے اور 2 فیمیل ہیں، ان کو بالوں سے گھسیٹ کے ہوئے آفس کے اندر لے کے جاتی ہیں، باقاعدہ مرغا بنایا ہے، اس پہ اس کو لاتیں ماری گئی ہیں، اس کو تھپڑ مارے گئے ہیں، اچھی خاصی مطلب اس کو چپیڑیں ماری گئی ہیں۔ میں آئی ہوں ادھر بے نظیر کے دفتر سم لینے کے لیے، میں اندر گئی ہوں 2 بجے اندر جا کے پھر میں نے ان سے بولا کہ جو ادھر کے اسسٹنٹ کمشنر ہیں انہوں نے مجھے کہا ادھر لائن میں نہیں، ادھر لائن سے اٹھو، اچھے چلو تم۔ میں نے کہا میں لائن میں ہی تو بیٹھوں، میں کون سا لائن سے باہر بیٹھی ہوئی ہوں، کہا، اور انہوں نے کہا جی اس کو ذرا پولیس والوں کو بھی لاؤ، اندر جو بیٹھی ہے نا پولیس والی 3 لڑکیاں اور 1 لڑکا، ان کو بلا کے کہہ رہی ذرا اس کو اندر لے کے جاؤ، اندر لے جا کے انہوں نے مجھے
डंडों से भी मारा, मुझे मुर्गा भी बनाया और मुझे थप्पड़ पुलिस वालियों ने मुझे मारा है। आपको पता है ये कौन है? मैंने कहा मुझे नहीं पता ये कौन है। कह रही यहाँ की असिस्टेंट कमिश्नर वो है, सीओ है। ये पैगाम देना चाहती हूँ उसको इधर से खत्म कर दिया जाए, यहाँ से ये खत्म करके उसका नाम है गुलनाज, एक का नाम है तंजीला। मैंने उनके ऊपर जो पट्टियां लगी थी मैंने उनके नाम पढ़े। मेल ने मारा, बाल पकड़े पहले वो मुझे मेल फीमेल दोनों तीनों ने मुझे पकड़ के पहले अंदर के सीट के लेके गए हैं, बालों के साथ मुझे पकड़ के अंदर लेके गए हैं। उसके फिर खुद वो मैं उसके आगे हाथ बांधू, मैं कहा भाई मुझे मेरे घर वालों के से एक दफा फोन करवा दो, पता होगा कि ये कुछ हो रहा है इसके साथ। अब द पॉइंट इज हेयर और क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर मरियम नवाज शरीफ के वाज़े अहकामात हैं कि तमाम जो पुलिस वाले हैं वो साइलिन को, आने वालों को, अगर फीमेल है तो उसको मैडम बोलें और अगर कोई मेल है तो उसको सर कह के बुलाएं। अब वो वाला मामला, ये उनके अहकामात, अब उसको ये भी पता होना चाहिए ना कि अगर वो तो चलो सर और मैडम कह दें, लेकिन पुलिस वाले क्या तशद्दुद करें। मैं वही कह रही हूँ कि एक सीएम जो है हमारी, उनके अहकामात हैं और दूसरी तरफ ये वाक़या सामने आ जाना पुलिस की जानिब से, ये खुल्लम खुला जो पंजाब हुकूमत के अहकामात हैं उनकी खिलाफ वर्जी है, उनकी धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं, उनकी बात को रद्दी की टोकरी कर दिया गया है। हमारे मुआशरे में हम जहाँ पे रह रहे होते हैं वहाँ पे इस तरह पुलिस वालों के अक्सर जो है ना वो कह लें कि इस तरह के निज़ामात सामने आते हैं, इस तरह की स्टोरी सामने आती हैं कि कोई पुलिस वाला अपने आप को बड़ा बासर फील करा रहा होता है, वो कहता है कि मैं पुलिस वाला हूँ, हाँ, मुझे ड्यूटी दे दी गई है, तो किसी के बाप तक पहुंच जाते हैं, किसी को इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा होता है। ये एक बड़ा वो कहते हैं कि अलमिया है, पॉइंट है, ये बिल्कुल पॉइंट है कि उस एक ऑफिस में आना जो पंजाब का है और वहाँ पे जिनको रखवाया गया है जो पुलिस वाले हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, पेश आता है तो तुम लोग खुद देखो, हैंडल करें। मसला देखने के वो खुद उनको अंदर ले जाकर उनको मारपीट कर रहे हैं। और फिर एक खातून के साथ मेल का इस तरह का बिहेव करना लेडी पुलिस के होते हुए भी अगर कोई मामला है तो हर चीज को कहने का, समझाने का स्टाइल होता है। मुझे मेल ने मारा है, हाँ, उसने कहा है कि एक मेल है, दो फीमेल हैं, मेल ने मुझे बालों से घसीटा है, पकड़ा है और मुझे घसीटते हुए ऑफिस के अंदर लेके गए हैं। अंदर सुमेरा नामी कोई ऑफिसर्स बैठी थी और उन्होंने कहा है कि इसको अंदर ले आए, कि ये होती कौन है इस तरह बात करने वाली। देखो हम जिस जगह पे रहते हैं उसमें अब ये सीन आ गया है कि आप अपने हक के लिए नहीं बोल सकते। पॉइंट ऐसी है, हम लोग गुलाम नहीं हैं, हमें अपने हक के लिए बोलना चाहिए। अब सवाल ये आ जाता है कि क्या अपने हक के लिए बोलेंगे तो इस तरह के मैटर्स देखने पड़ेंगे। बिल्कुल ये तो फिर पढ़ी लिखी ना तो बात वही आ जाती है, अगर अपने हक के लिए बोलो तो फिर उनको जो है ना अंदर ले जाओ, मारपीट करो, तशद्दुद बनाओ, चलो भी साइड पे हो जाओ। हाईलाइट उसका किया गया है, हाईलाइट है, लेकिन बात तो तब है ना कि डीपीओ साहब जो है वो उनको उस ओहदे से हटा दें, क्योंकि पहले भी इस तरह के उनके बारे में केसेस सामने आना, प्रॉपर एक्शन नहीं हुआ तो वो फिर हौसला मजीद बढ़ गया कि भाई पहले भी होता है, क्या हो गया, कोई डिसमिस नहीं किया गया, कोई फाइट नहीं किया गया, कोई रिजेक्शन नहीं की गई, तो उसकी वजह से ये मामला फिर एक बार सर उठा गया। अब मसला ये आ जाता है कि गवर्नमेंट के अहकामात की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जियाँ होना और वो पंजाब पुलिस जिनके अगर किसी के अच्छे काम कर दे तो नारे लगाए जाते हैं, जी पंजाब पुलिस जिंदाबाद। अब ये पंजाब पुलिस के वो करतूत हैं जिन्होंने पूरे पंजाब पुलिस के डिपार्टमेंट पे ना एक धब्बा लगा दिया है, बिल्कुल बुरा असर डाला है, बिल्कुल धब्बा लगा दिया है कि आप देखें मेल को बिल्कुल भी जो है कोई भी कानून नहीं कहता कि आप मेल पे जाके जो है वो मेल जो है वो जाए और वो लेडी पे जाके तशद्दुद करे। अगर लेडी का मामला है तो ऑब्वियसली लेडी पुलिस किस लिए होती है, बिल्कुल, और अगर मेल का है तो फिर मेल का मामला किस लिए होता है। ये देखो एक अलग अलग अपार्टमेंट और डिपार्टमेंट्स होने के बावजूद भी इस तरह के वाकयात, उनको तशद्दुद नहीं करना चाहिए था। फर्ज करें अगर वो खातून बात नहीं मान रही, लाइन में नहीं है, तो उसको भाई प्यार से समझा दें कि बीबी लाइन में खड़ी हो, इस तरीके से ना करो। अब बजाय वो आई है भाई कितनी मजबूर होगी, क्या करने आई, किसी का दिल करता है सिम लेने आई है, उसने कहा दोपहर 2 बजे का टाइम है, मैं सिम लेने गई हूँ, मैं लाइन में हूँ और उसके बावजूद मुझे कहा जा रहा है कि तुम पीछे चले जाओ, यहाँ से हट जाओ। उसने कहा कि मैं लाइन में ही खड़ी हूँ। अब इतनी सी बात पे उसको इस तरह वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाना, और एक औरत जात के लिए, बिल्कुल देखो ना जिस तरह के आपको पता है कि आयत मुबारका भी है कि औरत को जंग में भी मारने की इजाजत नहीं है। तो फिर वहाँ पे मार भी कौन रहा है, मेल मार रहा है, और वो फिर पुलिस वाले जिनको ये इख्तियार नहीं है। अब देखो हमारी पंजाब हुकूमत इस तरह से इकदाम करी है कि आवाम और पुलिस के मबैन फासला कम हो जाए और वो अपने जो मामलात हैं, जो भी उनके मसाइल हैं, वो
प्रॉपर तरीके से पुलिस के सामने रख सके, पुलिसिंग को फिरोग दें। ऐसे लेकिन एक तरफ पुलिसिंग के मामलात को फिरोग दिया जा रहा है, फासला कम किया जा रहा है, दूसरी जानिब पुलिस के इस तरह के इकदामात से जो है वो आवाम का एतमाद बहाल नहीं हो रहा। आवाम सवालात उठा रही है कि एक सीएम के अहकामात हैं, दूसरी जानिब सर मैडम कहना तो दूर की बात, उन्हें बीबी कह के भी नहीं कहा गया, बल्कि उल्टा उन्हें खुद ही है ना जो कि इज्जत नहीं रास के भाई उनके कोई पुलिस को जो है ना वो सर बोले या कोई इस तरीके से, वो खुद ही जब इतनी ज्यादती करेंगे तो कौन उनको सर बोलेगा। नहीं, गवर्नमेंट के अहकामात है ना कि जो भी साहिल आता है अपना मसला लेके उन्हें सर मैडम कहते। अब देखिए सर मैडम दूर की बात, उस औरत को ना तो बीबी कहा गया, ना ये कहा गया कि आपको मैंने ये बात कही आप उसको फॉलो करें। इनफैक्ट उसके बरक्स इन्होंने घसीट के अंदर लेके गए, फिर बालों से, ये अल्लाह माफ करे कोई जंग वहां पे लगी हुई थी कि जिसको आप औरत की इस कदर तजलील कर रहे हैं, फिर भरे वहां पे दफ्तर में, वहां पे मेल हैं फीमेल हैं तमाम लोग हैं, उस बंदे की इज्जत नफ्स मजरूह हुई। फिर इन लोगों ने एक पंजाब पुलिस के जो डिपार्टमेंट है उसको गंदा किया, पंजाब पुलिस की वर्दी है उस पे दाग लगाए। अब पॉइंट ये आ जाता है कि हम ये नहीं हम कह रहे कि सिर्फ ये बिस्प के सेंटर में ऐसा होता है, आप किसी जगह पे चले जाओ ना, किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, किसी भी सरकारी आप उसमें चले जाओ, किसी इदारे में चले जाओ, वहाँ का जो गार्ड है ना वो भी अपने आप को ऐसा फील करा रहा होता है कि वो वहीं का प्राइम मिनिस्टर तो वही है, वही हेड है। जो अवाम है ना ये इनके साथ सख्ती ना की जाए तो ये सुनती नहीं है। भाई सख्ती मुंह से करें जितनी मर्जी, लेकिन हाथ उठाना किधर का जो है ना वो कानून है, और वो भी लेडीज के ऊपर। तो लेडी हो या मेल हो, बात यह है कि विदाउट ना हाथापाई पहले होती है, चाहे छोटी सी बात। अब उसमें भी गलतियां जो है ना हमारे अपने जुडिशियल सिस्टम की हैं। हमारे मुआशरे में इस कदर जराइम बढ़ चुके हैं कि वो एक केस का फैसला सुनाते सुनाते कोई सालों गुजर जाते हैं, उसका फैसला तब आता है, तब तक बहुत देर हो जाती है, और फिर उस लेट होने की वजह से जो है वो मुआशरे में जो है वो उसी तरीके से जो जराइम होते हैं वो मजीद क्राइम स्टोरीज इस तरह की बढ़ जाती हैं कि जो हम टीवी में देखते हैं, कोई सीरियल चल रहा है। अब देखो ये भी एक सीरियल वाला सीन है कि जरा सी उसने बात की है, उसको मुर्गा बनाया है, और फिर मुर्गा बनाना यार, आप लेडी को मुर्गा बना रहे हो, कोई खुदा का खौफ खाओ, इनकी अपनी माएँ बहनें बेटियां नहीं है, और वो एक लेडी हो के उसको ऑर्डर कर रही है मेल को कि आप इसको अंदर लेके आओ। सबसे पहले तो उसको जो है ना वो खुद एक औरत जात है, उसके बावजूद उसका ये रवैया, ये पूरी इंसानियत को शर्मा गया है कि अल्लाह की बंदी तुम खुद एक औरत हो, और औरत हो के औरत के साथ तुम इस तरह का सलूक कर रही हो, बिल्कुल शर्म नहीं है। एक ऑफिसर हो, ऑफिसर को ये जेब देता है बजाय ये कि तुम अवाम के दिल जीतो। तो फिर नीचे वाला अमला भी वैसा ही होएगा ना, जैसा हेड होगा ऐसे होंगे, हाँ तो जैसा हेड होगा वो तो खुद देखेंगे कि भाई ये खुद इस तरह की कह रही है कि इनके साथ ये करो, ये सलूक करो लेडीज के साथ, तो फिर वो तो आराम से जो है ना वो करेंगे, उनको तो एक वो जो पॉइंट मिल गया। जाहिर है बड़ा ऐसा है तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह वो वाला सीन हो गया कि बिल्कुल एक शर्मो हया खत्म हो गई है। शर्म वाली बात है, डूब मरने का मुकाम है कि एक औरत एक मेल को ये ऑर्डर कर रही है कि इस औरत के साथ ऐसा सलूक करो। वो ये भी कह रही है मुझे फोन वगैरह दो ताकि मैं अपने घर वालों को बता सकूं कि भाई मैं इधर हूँ और मेरे साथ ये कर रहे हैं। फोन तो दूर की बात, वो तो बस तशद्दुद में लगे हुए हैं। वो एक सिम लेने आना उसका जुर्म बन गया है कि पता नहीं फ्रस्ट्रेशन किस चीज़ की होती है और निकल फिर बंदों पे जाती है या आवाम पे जाती है। ऐसा ये मतलब इस तरह के बड़े सीन हैं। हम अक्सर जिस तरह बाजार जाए या किसी और जगह पे जाते हैं वहाँ पे देखते हैं कि जो पुलिस वाले जिनकी ड्यूटीज होती हैं वो इस तरह दुकानदार वालों के साथ बात कर रहे होते हैं, इतनी लूज टॉकिंग कर रहे होते हैं कि वो सुनने वाले को शर्म आ जाती है और फौरन से कह देते हैं वही ये तुम्हारे बाप का माल है। बिल्कुल ऐसे फौरन से बाप तक जाना। और ये पुलिस यूज करते हैं, पुलिस की जुबान है। अगर पुलिस की जुबान ऐसी है तो इट मीन्स के उनके जो हेड्स हैं उनकी जुबान भी वैसी है। वैसी होगी। क्या इनके बारे में रिपोर्ट्स नहीं आती? कुछ बेचारे डर के हमारे रिपोर्ट्स नहीं करते और जो कर देते हैं फिर उनका उससे भी ज्यादा बुरा हाल सोशल मीडिया पे हर तरफ उनको जो है भी अपने पे बजाय लेना, अपने अमले को दुरुस्त करना। तुम लोग कह रहे हो कि भाई जो है ना सारा कसूर ही अगले बंदे का। अगले साल का है, कोई एक सिम लेने आई है, वो पैसे भी नहीं लेने आई, वो सिम लेने आई है
अच्छा, और जो पैसे वही लेने आई है उनके साथ कौन सा अच्छा सलूक करते हैं ये लोग? जाहिरा कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे गालियां तक दी जाती गालियां दी हैं, जाती है, फिर भी उनका हौसला है कि भाई वो खड़ी रहती हैं और अपनी पता बारी नहीं का किस इंतजार हद करती हैं, तक वो बिल्कुल। मजबूर हो जाती और हैं, वैसे किस भी हद किसका तक। दिल करता है कि जो है ना वो इस तरह जलील हो गर्मी में, ठीक है, कोई बाहर जाए और पैसे इस तरह लाइनों में खड़े होके ले, बिल्कुल इस धूप इसका पे दिल- बाहर निकलने का नहीं दिल करता। वैसे ऐसा भी सीन होना चाहिए ना, गवर्नमेंट को कुछ इस तरह के इकदाम करने चाहिए कि सिम कि पैसे हर है, दुकान से जाके निकलवा हाँ दो, पैसे जो है ना वो मोबाइल पे ना आए। ऐसे लाइन में खड़े हो, ना उनकी जलीलो ख्वार हो, ना पानी का इंतजाम गर्मी में, ठीक है, वो बच्चे लेके घरों से बाहर फिर आती हैं। बदतमीजियां बर्दाश्त करना, बदतमीजियां, गालम गलोच तक गालियां। बर्दाश्त करना, इस तरह के हम लोगों ने बिस्प के जो है वो आपको पता है कि न्यूज़ हाइलाइट्स की हैं बिल्कुल। कि जहाँ पे गालम गलोच तक पब्लिक के साथ किया जाता है, फीमेल्स के साथ बिल्कुल उनको धक्के दिए जाती हैं और वो सारी चीज़ें मेल कर रहा होता है। मेल। हालांकि किसी रूल रेगुलेशन में ये नहीं है कि मेल कोई जो मेल है जाए ना, फीमेल के साथ बदतमीजी करे, कोई चादर, इवन यहाँ तक नहीं है कि अगर आप किसी के पास रेड करने जा रहे हैं, उनके घर खवातीन है, तो चादर मेल को ये इजाजत नहीं है कि वो उसके घर की दीवार पे लांग के जाए। इट मीन्स कि चादर चार दीवारी का तकद्दुस। बिल्कुल। और अगर आप ऑन द फ्रंट हो, आप फेस टू फेस हो, तो आपको ये कौन सा लॉ कह रहा है कि आप किसी लेडी के साथ गालम गलोच करो, उसको गालियां दो, उसको धक्के मारो, उसके साथ नाजेबा कह लो कि सलूक करो, नारवा सलूक करो, जो बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वो पता नहीं किस हद तक मजबूर होके आते हैं इस तरह के लोग कि जिनके लिए शायद फिर सरवाइव करना बजाय मुश्किल हो अपने जाता है। पंजाब पुलिस के सारे अमले को इकट्ठा करके बजाय उनको समझाने के, जो ये लोग फिर आगे से सारा निकाल देते हैं कि भाई गलती ही अगले बंदे की थी। हालांकि इस तरह नहीं करना चाहिए। जो गलती अगर मेल की है, जब आप लोग खुद उनको जो है वो कानून के मुताबिक नहीं कहते कि लेडीज के ऊपर हाथ उठाएं, तो फिर ये अपना कानून क्यों बनाने लग जाते हैं वहाँ पर? वही आ जाती है ना बात कि समझो जिसकी सरदारी है उसी का डंडा चल रहा है। बिल्कुल ऐसे अब ये हो जाता है कि दूसरे देखो वाला ये मीटिंग्स पता होती नहीं हैं, बिल्कुल। मीटिंग्स में अगर कारकर्दगी रिपोर्ट ली जाती है, उसमें पुलिस के खिलाफ भी ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जिनके खिलाफ ढेरों से शिकायत आती हैं, साइल बताते हैं। जिस तरह ओपन डोर पॉलिसी गवर्नमेंट की जानिब से बड़ा एक अच्छा कदम है, वहाँ पे साइल आते हैं फेस टू फेस डीपीओ को या आरपीओ जो भी आते हैं, ऑफिसर्स होते हैं या एसएचओज होते हैं, उनको अपने मसाइल से आगाह करते किया जाता हैं, है, वहाँ पे एक्शन लिया जाता है, प्रॉपर एक्शन होता बिल्कुल। है। लेकिन वो एक्शन का फ़ायदा कोई नहीं होता। अगेन जो पुलिस मेन वालों की वहाँ वही पे गुंडागर्दी फायदा वैसी उसको होती highlight नहीं है। करते। देखो हर दफ़ा जो है वो पुलिस जो है गवर्नमेंट भी बदल जाती है, पुलिस भी बदल जाती है, लेकिन उनकी जो एक वर्दियों के माशाल्लाह हाँ जो करतूतें होती हैं, जो उनके रवैये होते हैं वो नहीं बदलते। वो अगेन वही वाली बात, गंदी मछली सारा तालाब गंदा करती है कि चंद का किया हुआ पूरे डिपार्टमेंट पे आता है, फिर जो मेन इनके पिलर्स होते हैं वहाँ तक जाता है और फिर उनकी वर्दियों पे धब्बा छोड़ जाता है। तो नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी स्टोरी जिसमें हमने आपको बताया है कि किस तरह पुलिस ऑफिसर की जानिब से, मेल और फीमेल दोनों की जानिब से, एक खातून जो कि सिम लेने आई है उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और जो कि हमारे लिए एक लम्हा फिक्री है कि पंजाब पुलिस जिसको पुलिसिंग के लिए हुकूमत पंजाब बड़े अच्छे इकदाम कर रही है ओपन डोर पॉलिसी के तहत कि आवाम और पुलिस के मबैन फासला कम हो सके, लेकिन मेल की जानिब से खतून का बालों को घसीटना, उसको घसीटते हुए अंदर लेके जाना, हाँ फिर मुर्गा बनाना, फिर उसको टांगे मारना, लाते मारना और फिर थप्पड़ों की जो है बरसात करना, ये जो है ना वो पूरे डिपार्टमेंट पे एक धब्बा छोड़ चुका है। अब देखना ये है कि क्या इस पे कार्रवाई मजीद होएगी, क्योंकि जो सुमेरा नामी ये असिस्टेंट कमिश्नर हैं या वहाँ की ऑफिसर हैं, उनके खिलाफ पहले भी काफ़ी कंप्लेंट्स हैं। तो मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। पहले जाके उन्होंने मुझे डंडों से भी मारा, मुझे मुर्गा भी बनाया और मुझे थप्पड़ पुलिस वालियों ने मुझे मारा है।